All students of class 10th are welcome in online classes run by TSS English School 87 RD Kaliganj. Now, I Ram Prasad Rai would like to teach you physics from electricity, and I want to discuss about the Ohm's law, that is as follows. Ohm's law gives a relationship between current and potential difference. ये ओम का जो नियम है, जो ओम साहब ने बताए हैं, वह इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का जो संबंध है, रिलेशन है, उस रिलेशन को वह ये बताए हैं. वो देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across its ends. ओम का कहना है कि अगर तापक्रम नियत हो तो किसी भी चालक से बहने वाली जो धारा है, उस धारा का मान उन चालकों के बीच का जो विभवांतर है, उन विभवांतरों के समानुपाती होता है. The current is directly proportional to the potential difference. So here is written I versus V. I indicates current and V indicates the potential difference at constant temperature. This can also be written as V versus I. V is equal to R into I. This is equal to and R is the converting form of Verges. ये Verges जो है, ये Verges का टूटा हुआ रूप है, बराबर और R. Here R is a constant called resistance or the conductor. R indicates the resistance of the conductor, means R जो है चालक का प्रतिरोध बताता है. The value of the constant depends on the nature, length, area of cross section and temperature of the conductor. तो ये जो R का जो मान है, ये R का मान डिपेंड करता है उस चालक का जो नेचर है, लेंथ है और क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है, साथ साथ टेम्परेचर है, उस पर ये निर्भर करता है. The above equation can also be written as V by I is equal to R. V is equal to potential difference, I is equal to current and R is equal to resistance. Now, the above equation is mathematical expressions of Ohm's law. Equation 1 can be written in words as follows: potential difference by current is equal to constant. We find that the ratio of a potential difference applied between the ends of a conductor and the current flowing through it is a constant quantity called resistance. V by I is equal to R. Now, V is equal to I into R. After doing equation, then you will get V is equal to I into R. Current I is equal to V by R. It is obviously from this relation that the current is directly proportional to the potential difference, and current is inversely proportional to the resistance. That's all. अब नाउ कम टू द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस, एज यू नो, रेसिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध. चालक का प्रतिरोध से क्या समझते हैं? द इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर. व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन पार्ट टू the other part, they collide with other electrons and with the atoms and ions present in the body of the conductor. Due to this collision, there is some obstruction of or opposition to the flow of electron current through the conductor. The property of a conductor
due to which it opposes the flow of current through it is called resistance. अब आप देखिए प्रतिरोध का चालक से क्या समझते हैं। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का सतत प्रभाव को हम धारा कहते हैं, लेकिन चालक जो है वह बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलके बने हैं, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल से बने हैं, एटॉम से बने हुए हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, एटॉम्स है, तो इससे जो होकर ये इलेक्ट्रॉन जो प्रभाव होता है, तो इससे क्या होता है कि आपस में कॉलिजन होता है, यानी डिस्टर्बेंस होता है। तो ये जो डिस्टर्बेंस होने की जो प्रकृति है, कंडक्टर में जो इस तरह का जो गुण है जिससे वो अपोज करता है करंट को बहने से, उसी का नाम है रेसिस्टेंस। यानी धारा को बहने में जो अपोज करता है उसी का नाम है रेसिस्टेंस। यानी धारा का प्रतिरोधक को ही हम कहते हैं रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। रेसिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वह निर्भर करता है उसकी लंबाई का, उसके मोटाई का, और उस पदार्थ का जो स्वभाव है, टेम्परेचर है, यानी उसका जो गुण है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल प्रॉपर्टीज है, उस पर वह निर्भर करता है। ए लॉन्ग वायर हैज़ मोर रेसिस्टेंस एंड ए शॉर्ट वायर हैज़ लेस रेसिस्टेंस। अब आप देख लीजिए कि तार जितना भी लंबा हो उसका रेसिस्टेंस उतना ही अधिक होता है, एक बात जान लीजिए। और दूसरी बात है कि तार की लंबाई जितनी छोटी होती है उसका रेसिस्टेंस उतना ही कम होता है। यहाँ तक लिखिए। हाँ लिखिए। हाँ जी, रुक जाइए। whereas a thin wire has more resistance। और फिर जो तार की मोटाई पर भी निर्भर करता है। जिससे तार की मोटाई जितना ही अधिक होता है उसका रेसिस्टेंस उतना ही कम होता है। कस के इसके विपरीत तार की लंबाई जितनी पतली होती है उसका रेसिस्टेंस उतना ही अधिक होता है। द राइज इन टेम्परेचर ऑफ ए वायर इंक्रीज इट्स रेसिस्टेंस। तार की जो तापक्रम है, तार का जो तापक्रम है, जैसे जैसे तापक्रम बढ़ता है वैसे वैसे उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ता है। तो ये तीन बातें पर निर्भर करना है, तीन बात को थोड़ा ध्यान में रखना है। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक जो है ओम कहलाता है, जो कि विच इज डिनोटेड बाय सिंबल ओमेगा। दिस टाइम द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस ओम can be defined by using Ohm's law as described below. Potential difference by current is equal to resistance. Now 1 ohm is equal to 1 volt by 1 ampere. The definition ohm, 1 ohm is the resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its end, a current of 1 ampere flows through it. We can find out the resistance of a conductor by using Ohm's law, V by R is equal to R. This will become more clear from the following examples. Sample problem 1. Potential difference between 2 points of a wire carrying 2 ampere current is 0.1 volt. Calculate the resistance between these points. अब देखिए एक सैम्पल प्रॉब्लम दिया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको मालूम है 1 वोल्ट, यानी 0.1 वोल्ट मालूम है, और करंट का जो वैल्यू है आपका 2 एम्पियर दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V by I is equal to R. According to the Ohm's law, putting the value of V and I in the above equation, then you will get 0.1 by 2 is equal to R. R is equal to 0.05 ohm. The value of
resistance equal to 0.05 ohm. Now sample problem 2. Sample problem 2, sample problem 3, you can solve it by using the formula Ohm's law. Thank you. And now come to page number 16, ग्राफ बिटवीन V एंड I. अब आप देखिए, हम लोगों ने जो ओम्स लॉ पढ़ा अभी, जो V और I के बीच संबंध बताता है, तो V और I के बीच इन संबंधों को बताने वाले जो हम लोग ग्राफ लेंगे, जो एक स्ट्रेट लाइन बता रहा है. If a graph is drawn between the potential difference reading and the corresponding current value I, the graph is found to be a straight line passing through the origin. A straight line graph can be obtained only if two quantities are directly proportional to one another. Since the current potential difference graph is a straight line, we conclude that current is directly proportional to the potential difference. अब आप देखिए, ग्राफ जो खींचा गया है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों के बीच, जो कि स्ट्रेट लाइन हमको मिल रहा है ओरिजिन से, वो इज द स्ट्रेट लाइन विच शोज द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आई. It means this straight line indicates that potential difference is directly proportional to the current, or current is directly proportional to the potential difference. This constant is called resistance of the conductor. Sample problem: the value of current I flowing through a coil for the corresponding values of the potential difference V across the coil are shown below. जैसे I एम्पियर है, V वोल्ट है, आपको दिखाया गया 0.05 एम्पियर, वोल्ट 0.85 है, 0.110, 0.70, 0.20, 3.5 वोल्ट, इस तरह से जो दिखाया गया है. और इस तरह से हम जब दोनों का ग्राफ लेते हैं, तो ग्राफ लेने के बाद एक स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होता है. ये स्ट्रेट लाइन जो है आपका ये बता रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है वह एक दूसरे का समानुपाती होता है. अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ता है तो करंट उसके साथ साथ करंट भी बढ़ता है. अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटता है तो करंट भी घटता है. इस तरह से इस संबंध को बताता है. अब आ जाइए एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ. ओम्स का नियम को सत्यापन करने के लिए एक प्रयोग दिखाया गया है. हो गया यहाँ तक है ना. तो ओम का जो नियम है, अभी अभी हमने पढ़ा कि V वेरिजेस टू I, और V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, विच इज शोन थ्रू द एक्सपेरिमेंट. जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिखाया जा रहा है, इसका वेरिफिकेशन के लिए वो देखिए. If we can show that for a given conductor, say a piece of resistance wire such as nichrome wire, the ratio potential difference by current is a constant, then Ohm's law will get verified. Alternately, we can draw a graph between the potential difference and the current I, and this graph is a straight line. Even then Ohm's law gets verified. Let us see how this is done in the laboratory. प्रयोगशाला में अब इसका हम कैसे सत्यापन करेंगे वो देखिए. सबसे पहले हम लोग एक सर्किट तैयार करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार करेंगे, जिसमें कि बैटरी है, स्विच है, आमीटर है और कंडक्टर है. कंडक्टर के जस्ट ऊपर वोल्टामीटर है और आपका रिहोस्टेट भी है. ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है एक दूसरे से इलेक्ट्रिक कंडक्टर वायर के द्वारा जुड़ा हुआ है. अब देखिए
ये रिहोस्टेट का जो व्यवस्था किया गया है, इस रिहोस्टेट के माध्यम से अलग अलग ये रेसिस्टेंस को हम बदलते हैं और उस रेसिस्टेंस के तहत जो करंट का जो फ्लो होता है और उससे जो हमारा ये वोल्टेज पैदा होता है, दोनों का हम मान अलग अलग लेते हैं। यानी अगर रिहोस्टेट फर्स्ट लेते हैं तो उस अवस्था में इस सर्किट के अंदर में जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है उसका मान ले लेंगे और दोनों के बीच का जो वोल्टेज है उसका हम वोल्टामीटर के द्वारा ले लेंगे। इस तरह से 2-3 यानी रेसिस्टर लेंगे और उसके बाद जो है हम अलग अलग उसका रीडिंग नोट करेंगे और उसके बाद रीडिंग नोट करने के बाद दोनों के बीच हम ग्राफ लेंगे। ग्राफ लेने के बाद हम देखेंगे कि ये एक सरल रेखा प्राप्त होता है। यह सरल रेखा जो है ये आपका ओम का नियम को ये सत्यापित करता है। इस तरह से ओम का नियम ये सत्यापित हो जाता है। तब तक के लिए इसके साथ साथ मैं इस यहाँ तक समाप्त करता हूँ और मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। इसे पढ़ा दिए? हाँ, हो गया, इसी का पूरा हिंदी में कर दिए।